Hi guys, let us continue with our chapter. Last lecture, we have seen some types of soil. Today's lecture, we will continue with another some types of soil. Last lecture, we have seen alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil. Now today we will see the desert soil, mountain soil, forest soil, marshy or petty soil. Now desert soil. This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ क्लाइमेट बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है. द सॉइल इज़ सैंडी एंड इनफर्टाइल. ये जो सॉइल है वो सैंडी टाइप होती है और इनफर्टाइल है. इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स. राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. In Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some parts of Saurashtra. With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. ये desert soil जो नाम सजेस्ट है उसी से पता लग जाता है कि ये soil desert एरिया में होती है जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है और sandy soil होती है जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज से सिर्फ ये दो टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स. ये माउंटेन सॉइल कहाँ है? माउंटेन एरियाज़ में, वैली एंड स्लोपी रीजन्स में. Its layer is very thin and is underdeveloped. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the regions of pine and cheed trees. ये कहाँ पाई जाती है? This soil is found in आसाम और दार्जिलिंग जहाँ माउंटेन्स एरिया है, जहाँ वैली और स्लोपी रीजन्स है. फॉरेस्ट सॉइल. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas and in Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai regions of Himalayas. The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to decaying leaves. It changes into blue or red color while going down with the land. Land की साइड ये जब जाता है तब उसका कलर ब्लू और रेड इंटू ब्लू और रेड में चेंज हो जाता है. बिफोर दैट यू हैव सीन the surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to decaying leaves. ये जो सूखे पत्ते जो होते हैं वो पत्तों में ह्यूमस लग जाती है जो बैक्टीरिया उसमें लग जाता है और ये लैंड becomes black. Besides tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy are also taken. The soil is found in limited area. ये जो soil कहाँ मिलेगा? Limited area में मिलेगा. और यहाँ कौन से crops उगाए जाते हैं? Wheat, maize, barley, paddy, etc. और tea, coffee, spices. Now marshy or petty soil. This type of soil develops in humid regions due to the accumulation of biotic elements. During rainy season, this land is submerged under the water, and when the water recedes, paddy can be grown in it. There is an excess of biotic elements and minerals in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash. Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and in Almora district of Uttarakhand. The soil has a very limited extent.
ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, कहाँ डेवलप होती है? ह्यूमिड रीजन्स में। और किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। जो बायोटिक एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे ये ह्यूमिड रीजन में ये डेवलप होती है सॉइल। और ड्यूरिंग रेनी सीजन में ये दिस लैंड इज सबमर्ज अंडर द वाटर, और ये वाटर के अंडर सबमर्ज हो जाती है। व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट, और जब इसके ऊपर पैडी राइस हम उगा सकते हैं। बट इन दिस सॉइल, इसमें बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स बहुत एक्सेस होते हैं। एंड इट शोज इनएफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटाश। इसमें फॉस्फेट एंड पोटाश नहीं होते हैं। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। नाउ सॉइल इरोजन। Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Erosion माने क्या है? डिज़ोल्विंग हो जाता है, इरोज हो जाती है। जो कैसे होती है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स, जो लैंड पार्टिकल्स छोटे छोटे टाइनी पीसीस जो होते हैं, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में चले जाते हैं। किसकी हेल्प से? मूविंग एयर एंड वाटर, हवा और पानी से बह जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लैंड टू अदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस से ये पार्टिकल्स, सरफेस लैंड के ऊपर के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बाय नेचुरल फोर्स। इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। ये जब इरोज हो जाती है तो वापस उसका बहुत साल लगते हैं उसका अपर लेयर बनने में। इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्टॉर्मी विंड, द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। और अगर ये सॉइल पार्टिकल्स हेवी रेन और स्टॉर्मी विंड की वजह से चले जाते, कैरिड अवे हो जाता है, तो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसका अपर लेयर को मेंटेन किया जाए। सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। और इसके लिए ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। Now what are the measures to prevent soil erosion? Soil erosion का हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके मेजर्स क्या ले सकते हैं? कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। लैंड में ये जो ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है, ग्रेजिंग माने जो ग्रास लैंड हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल करना है। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टोर मेथड इन स्लोपी रीजन्स। स्लोपी रीजन्स जहाँ है वहाँ प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट, उस शेप के हिसाब से वहाँ प्लांटेशन करना ज़रूरी है। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड माने जहाँ एम्प्टी लैंड पड़ी है या बैरन लैंड है ज़मीन, वहाँ ट्रीज को प्लांट किया जाए। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देर आर स्ट्रीम्स। जहाँ पानी का बहना होता है वहाँ चेक डैम्स बनाया जाए। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। जो पानी का बहना, जो स्पीड होता है, उसको कम करने के लिए वहाँ कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड, वो फील्ड में बहुत डीपली कल्टीवेट करना ज़रूरी है ताकि वो सॉइल, वो स्पीड ऑफ वाटर में बह ना जाए। तो वी हैव सीन द soil erosion and measures to prevent the soil erosion. Next lecture we will see the soil conservation and remedies of soil conservation. Thank you.